કે કોરોનાને અટકાવવા શું કરવું પડે. એટલે એક છોકરાએ ઈંટો મૂકી હતી ગોળ. એક ઈંટ પાડી એટલે જેને જેને અડતી જાય બધી ઈંટો પડતી જાય, પણ જે દૂર હોય ત્યાંની બધી અટકી જાય. એટલે સંઘર્ષનો જે રોગ હતો કે ભાઈ એને અટકાવવો હોય તો થોડા દૂર રહીએ તો રોગ અટકી જાય. ભગવાને વિચાર કર્યો બ્રહ્માસ્ત્રની સામે બ્રહ્માસ્ત્ર અથડાશે તો ભયંકર વિસ્ફોટ થશે. અર્જુને તો બ્રહ્માસ્ત્રને પાછું ખેંચી લીધું, પણ અસ્વસ્થામાને ખેંચતા નથી આવડતું. હવે એને ડાયવર્ટ કેવી રીતે કરાય? તો ભગવાને એટલી નાની પૃથ્વી બનાવી દીધી. પૃથ્વીનો વિનાશ કર્યો બ્રહ્માસ્ત્ર હતું તો ઉત્તરાના ઘર તરફ વાળી દીધું. માનું ઉદર એટલે આખું એક બ્રહ્માંડ છે. ભગવાન શેષના સમુદ્ર મધ્ય જેમ બિરાજમાન છે, શાંતાકારમ વજકશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ. અને એ સમયે એની ડૂટીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય, અને કમળ ઉત્પન્ન જેમ બ્રહ્માજી થાય એ માના ઉદરની અંદર, એ સાગરની અંદર એ કમળ દ્વારા એ બ્રહ્મારૂપી, એ નારાયણ રૂપી એ સંતાન પ્રાપ્ત થાય છે. માં જમે છે, બાળકને જમાડતા નથી આપણે, છતાં માં જમે એ બાળક જમી લે છે. તો એની નાળ એક છે, એ પોષણ બધું જેને પ્રાપ્ત કરાવે છે. એ વિચારો, વર્તન, વાણી બધું જ એ બાળક એ સમયે જ બધું પ્રાપ્ત કરી લે છે. ચલો આપણે તો બહુ ભણેલા છે, બહુ હોશિયાર છે, એટલે બાળકને સારું સારું શીખવાડીએ છીએ, સમજાવીએ છીએ, પણ પશુ પક્ષીઓના બચ્ચાઓને કોણ શીખવાડવા લઈ જાય છે? અહીં નહીં જવાનું, આવી રીતે ઉડવાનું, આ ખવાય આ ન ખવાય. તો ઉદરમાંથી જ એને બધું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ઉત્તરાના ગર્ભનું ભગવાને રક્ષણ કર્યું. પરીક્ષિતનો જન્મ થયો. પરિક્ષિત સપરીક્ષિત. મેં તમે કેટલી પરીક્ષાઓ આપી બોલો? જન્મતાથી અત્યાર સુધીમાં કેટલી પરીક્ષાઓ આપી? આ 10મા 12મામાં આવે તો બાળકોને ઉપર કેટલું ટેન્શન આવી જાય છે. આપણે કેટલી બધી પરીક્ષાઓ પાસ કરી. આર્થિક, પારિવારિક, શારીરિક, માનસિક કેટલી બધી મુસીબતોની બધી એક્ઝામો છે. એ બધી એક્ઝામો પાસ કરતા કરતા અહીં સુધી આવ્યા છે, પણ હજુ એક ફાઇનલ એક્ઝામ આપણા બધાની બાકી છે. અને એ ફાઇનલ માટેનું આ નોલેજ છે. એ સમયે પુસ્તકીય જ્ઞાન નહીં આવે, ધંધાનું જ્ઞાન નહીં આવે, પારિવારિક જ્ઞાન નહીં આવે. એ સમયે કેવલ આ સત્સંગ રૂપી આધ્યાત્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે પરીક્ષિત સપરીક્ષિત. પરીક્ષિત એટલા માટે છે કે જેને ગર્ભની અંદર પણ એ જ દર્શન કર્યા, અને જન્મ્યા પછી પણ એને શોધતો શોધતો અંતે શુકદેવજીના સાનિધ્ય સુધી પહોંચી ગયો. એમ જેને આપણે પ્રાપ્ત કર્યા છે એને શોધતા શોધતા એના શરણ સુધી પહોંચી જઈએ એટલે આપણે પરીક્ષિત, ઉત્તીર્ણ બની ગયા કહેવાય. પરીક્ષિતનો જન્મ થયો. શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરાયો. મહાભારતનું યુદ્ધ વિરામ થઈ ગયું છે. આજે પહેલી વાર ભગવાન હસ્તિનાપુરથી દ્વારિકાપુરી તરફ વિદાય થઈ રહેલા છે. આપણા બધાનો અનુભવ છે, નજીકમાં રહેનારની કોઈ કિંમત હોતી નથી. ઘરમાં સાસુ ઘરમાં રહેતા હોય ને વહુને પૂછે કે તારે સાસુ ક્યાં ગયા છે, તો બહુ શું કે એ ઘરમાં બેઠા, કઈ જવાના હે. પણ કલાકને બદલે 2 કલાક ને 3 કલાક મંદિરમાં બેસી રહો તો બહુ શોધવા નીકળી જાય. પછી પાછા આપણે કહીએ તું આખો દાડે કહેતી ને ઘરમાં તો બેસી રહી. નાના બા એ તો કલાક જ બેસવાનું. કેમ? તમે ઘેર આવો, થોડું કામ કરો ને. હું બજારમાં જઈ આવું, તમે રસોઈ કરો, કપડાં વાળો. નજીકમાં કિંમત નથી, પણ દૂર ગયા પછી યાદ કરીએ છે. એટલે જાગ્યા ત્યાંથી સવારમાંનો. જુવાનીના 50 વર્ષ જતા રહ્યા એની ચિંતા કરવાથી હવે 50 પાછા નથી આવવાના, પણ જે બાકી રહ્યા છે ને એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો તો 50માં જે નથી કમાયા એ બાકીના 25માં કમાઈ શકાય છે. કુંતામાં કુંતા સ્તુતિ છે. મારા મત પ્રમાણે એવું લાગે છે કુંતા સ્તુતિ આપણા માટે બાલ મંદિરની સ્તુતિ છે. આ કથા છે.
પણ બાલ મંદિરમાંથી આપણે આગળ વધતા નથી, આપણી તકલીફ છે. એટલે કુંતા સ્તુતિ બહુ જ આવશ્યક છે આપણા માટે. ભગવાનને શું આપવાનું, ભગવાન પાસે શું માંગવાનું અને ભગવાનના દર્શન કેવી રીતે કરવાના. પુષ્ટિમાર્ગ કહે છે ચરણારવિંદથી દર્શનનો પ્રારંભ થાય અને મુખારવિંદે વિરામ થાય અને આંખ બંધ કરીને પરીક્ષા થાય. અધરમ મધુરમના ભાવ દ્વારા પરીક્ષા કરવાની. પહેલી વાર કુંતામાને થયું કે આ મારો ભત્રીજો ન હોય, આ મારો ભગવાન છે. અત્યાર સુધી તો ભલે मैंने आशीर्वाद आप કર્યા, પણ અમારો भतीजो नो ये मेरा भगवान है. बस ऐसी भूख लग गई. अब तो लगी लगन है मिट्टी में मिल जाना, ऐसी लगने लग गई. सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भूल गई. राजमाता पणो भूल गई, वडील पणो भूल गई. एक नानो बालक, नन्हा बालक जो अपनी माँ के पीछे दौड़ता है, वो नहीं ऑटो रिक्शा दिखता, नहीं साइकिल दिखता, नहीं स्कूटर दिखता, इनको केवल अपनी माँ ही दिखती है. आज कुंता माँ को भी ऐसा भाव आ गया, वो रास्ते में दौड़ रही है क्योंकि आज जाग गई है मेरा भतीजा नहीं है, मेरा भगवान है. आज समय चला गया तो दूसरा ये समय आने वाला नहीं है. गई काल एटले जीवन मांथी कैंसल थेलो चेक, आवती काल एटले प्रोमिसरी नोट. तो आपणुं शुं बेरर चेक छे आपणी पासे. वर्तमान समय ए बेरर चेक छे. ज्यां वापरो, जेवी रीते वापरो, तमे स्वतंत्र छो. आज आज सो अब. अने तिथि कुंतामाए जाग्या त्यांथी दोट मूकी दीधी. એટલો વિયોગ થયો, એટલી તડપ થઈ, એટલી ઉત્કંઠા થઈ. રસ્તા ઉપર ઊભા છે. ભગવાનનો રથ જોયો. ભગવાને વિચાર્યું મામને આશીર્વાદ અપાયા, મા મારી પર કેટલો બધો પ્રેમ કરે છે, લાવો માને પગે લાગી આશીર્વાદ લઈ લો. ભગવાન આવો વિચાર કરી રથમાંથી નીચે ઉતરવા જાય ત્યાં તો કુંતામાં પ્રભુના ચરણમાં ઢળી પડ્યા. નમસ્તે પુરુષમ ત્વાદ ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बर्हिरवस्थितं. हे पुरुषोत्तम, हे जगत नियंता, हे जगदीश्वर, हे ईश्वर. कन्हैया हंसने लगा, रही ये माँ को सब पता कैसे चल गया? जो अभी तक तो मुझे भतीजा भतीजा करके बुलाती थी, आज इतना सब ज्ञान हो गया. कुछ चाहिए इनको. माँ कुछ चाहिए तेरे को? हाँ, क्या चाहिए बोलिए. एक रामायण में विभीषण ने भगवान से मांगा है और एक श्रीमद् भागवत में कुंता माँ ने भगवान से जो मांगा है. हम सब ने मांगा है केवल संपत्ति, परिवार, आर्थिक. लेकिन ये दो भक्तों ने मांगा है वो हम कभी मांग नहीं सकते क्योंकि हमारी तो इच्छा ही नहीं है. वो क्या मांगा कुंता ने? विपदा शंतु न शश्वत यत्र यत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शन. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. माँ क्या चाहिए तेरे को? लल्ला, मैं सोच रही हूं कि 14 साल तक हमको दुख था, 12 साल तक हमको दुख था नहीं. आप हमारे साथ में घूमे हैं. 12 साल तक आप हमारे साथ रहे, लेकिन क्या हुआ? आज ये सम्राट का राज मिला और आप हमारे से दूर जा रहे हो. ये संपत्ति किस काम की? सोचिए जरा, अपने जीवन में भी सोचिए. जब दुख था सारा परिवार मिलजुल कर रहता था, लेकिन सुख आने लगा और परिवार में छिन्न भिन्नता आ गई. कौन सुख है? कैसा सुख है? सुख तो वो था, कुछ नहीं था, फिर भी सब साथ में बैठते थे. आज सब कुछ है लेकिन कोई साथ में बैठते नहीं. आज स्थिति ऐसी आ गई है. सब शुरुआत तो हो गई है. देखो, आपके घर में मौन रखना हो किसी को तो मोबाइल लाके दे दो.
अपने आप मौन हो जाएगा, बस वहाँ उनमें रुस्फुट हो जाएगा। कोई पास में बैठा है कि नहीं बैठा है, कौन आया कौन गया, कोई कुछ नहीं। ये विकट परिस्थिति हो गई अब। बहुत एक एक्सपीरियंस मेरे को, मैं लंदन में था, मैं किसी ने मेरे को बुलाया, भोजन किया और वो मोबाइल लेकर बैठ गया। फिर मेरे साथी था, उन्हें समझ गया वो, मैं भी समझा, लेकिन मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। तो साथी ने कहा दिया चलिए महाराज जी। रास्ते में कहा कि ये ऐसा आदमी होना चाहिए, इतना प्यार से बुलाते और फिर बात करने की वजह मोबाइल लेकर बैठ गए। कभी हमको भी ऐसा सोचना चाहिए। हमारे घर पे कोई आए तो 10-15 मिनट उसको साइड पे रख दीजिए, प्यार से बात कर लीजिए। ये मिलजुल होना चाहिए। सुख तो है लेकिन ये सुख दुख जैसा हो जाता है। कुंता माँ ने कहा मुझे ये सुख नहीं चाहिए। आज मोबाइल से भी इतनी तकलीफ है ना, हम कहते हैं भैया मैं आऊं, घर पे होते तो भी मना कर लेते, नहीं नहीं मैं तो बाहर हूं। आएगा तो फिर कौन झंझट करे, बोल दो बाहर है। शुद्ध पुराणी बताते हैं, कुंता माँ ने कहा मुझे दुख में सुख मिलना चाहिए। और सुख कब मिलेगा? आप जब मेरे पास हो तो सुख ही सुख है। हम ऐसे नहीं कहते भगवान को हमको दुख दीजिए, ऐसा नहीं कहने का। और कहने से भी क्या होता है? कौन कहता है भगवान को भगवान हमको दुख दे, फिर भी दुख आता है? कोई नहीं कहता भगवान से कि हमको दुख मिले। सभी लोग यही कहते हैं हमको सुख मिले सुख मिले, फिर भी दुख कहां से आता है? कौन दे जाता है? तो ये कर्म का फल है। हमने भी बोया है और हम भी कांटे खाएंगे। लेकिन हम मांग सकते हैं ऐसी भक्ति की भूख दीजिए जो भगवान ने हम सबको दी है। 12 बजे खाने के बाद सबसे पहला टेंशन किसको होता है? तो बहनों को टेंशन होता है कि शाम को क्या खाना बनाएगा। तुरंत पूछ लेते शाम को क्या बनाए। अभी शुरुआत भी नहीं हुई है पचने की और शाम की टेंशन। विपदश्चंतु न शाश्वता। बारंबार आपका दर्शन हो जाए तो इसीलिए भूख लगती है, तो बारंबार हम रसोई खाने में दर्शन करने जाते ना, भाई कितना हुआ, क्या हुआ, कब होगा। तो ऐसी भक्ति की भूख मांगी है कि मैं बार बार आपका दर्शन करूं, आपका स्मरण करूं, आपका स्मृति मुझे रहे करे। क्या मांगने का? हम सबने पहली बार बच्चे को भगवान के पास ले गए थे। छोटा बच्चा जब बोलने लगता है और मां लेकर जाती है और भगवान से क्या मंगाती है? सत्य मंगाती है। बेटा जी भगवान से मांगिए, मुझे भक्ति दीजिए और मुझे शक्ति दीजिए। ये सबसे पहला सभी मां भगवान से सत्य ही की मांगनी करती है। मुझे बुद्धि दीजिए, भक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। 3-4 साल का बच्चे ओवर स्कूल में एडमिशन लिया है और माँ बच्चे को लेकर जाती है, मंदिर में पाए लगाती है और कहती है बेटा दीजिए भगवान से मांगिए। क्या मांगे? उस समय माँ गलती कर देती है। पहली बार सत्य मंगाया, दूसरी बार डाइवर्ट कर दिया। दीजिए भगवान से कहिए मुझे बुद्धि दे, मुझे विद्या मिले। बेटा बड़ा होकर और डाइवर्ट हो गया। नहीं उसको भक्ति चाहिए, नहीं शक्ति चाहिए, नहीं बुद्धि चाहिए, नहीं विद्या चाहिए। इनको क्या चाहिए? केवल संपत्ति। लक्ष्मी दीजिए, लक्ष्मी दीजिए, लक्ष्मी दीजिए। बेसिकली मांगा तो था लेकिन वो भूल गया। तो केवल हम सब संपत्ति के पीछे दौड़ गए। वो इसीलिए सूत्र भी कहते माधव माधव करोति द्रव्यम न धावनम चेवकारमयि लक्ष्म्या। कुत्ते सारे दिन दौड़ता है इस गली से उस गली, इस गली से उस गली, उसका पेट भी नहीं भराता। हम ऐसे दौड़ते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। व्यर्थ दौड़ने से कुछ नहीं मिलता। थोड़ी दृढ़ता होनी चाहिए, थोड़ा संतोष होना चाहिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ होना चाहिए, थोड़ा विवेक होना चाहिए, थोड़ी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। कुंता माँ ने भगवान से मांगा, अब देने का समय आया। क्या दे सकते हम? श्री कृष्ण कृष्ण सखा कृष्ण स्वभावनी। हे कृष्ण, हाँ बोलिए। हे मेरे बेटे अर्जुन के सखा कृष्ण, हाँ बोलिए मां। आपको सब लोग गोविंद क्यों कहते हैं?
गोपाल कहते हैं। मुझे गोपाल इसलिए कहते, मैं गौवाओं का पालन करता हूं, इसलिए मुझे गोपाल कहते हैं। अच्छा, कितनी गौवा है आपके पास? मिलियनर किसको कहा जाता है उस समय? तो जिसके पास 9 लाख गाय होती थी उसको नंद कहा जाता था। जिसके पास 10 लाख से ज्यादा गाय होती उसको वृषभानु कहा जाता था। तो कन्हैया ने कहा मेरे पास 9 लाख गौवा है। अच्छा, इतनी सारी गौवा? हाँ, तो इतनी सारी गौवा लगता तो मेरी भी थोड़ी 2-4 गौवा दे दूं तेरे को? हाँ, दे दो दे दो। हम भी देते हैं ना रोज मंदिर में जाके। क्या देते हैं? भगवान मेरे बेटे की एग्जाम है, पास हो जाए ऐसा काम करना। ये गौवा ही दे दी उसको, ये सौंप दिया काम, बेटे के पास जाओ और एग्जाम में पास करवा दो। लेकिन क्या कहना चाहिए ये कुंता सिखाती है। गोविंद गोद्विज मुरारी हरावतार। जैसे गौवाओं का पालन करते करते आपको गोपाल कहते हैं, तो मैं भी आपको गौवा देती हूं, इसलिए मैं आपको एक नया नाम देती हूं, हे गोविंद। गो इंद्रिय यशस गोविंद। मेरी एकादश इंद्रियां आपके चरण में मैं अर्पण करती हूं। आप इसकी रखवाली कीजिए, आप इसका पोषण कीजिए। हे गोविंद, मैंने आपको सौंप दिया, अब सौंप दिया जीवन तेरा। गोविंद गोद्विज मुरारी हरावतार। योगेश्वराखिल गुरोर भगवन नमस्ते। हे योगेश्वर, योग ईश्वर से योगेश्वर, जो सारे साधनों से पर है वो ईश्वर है। मैं आपको, आप सब कुछ कर सकते हो, इसलिए कुंता ने कहा योगेश्वर। मेरी एकादश इंद्रियों, आप इनका पोषण कीजिए, इसका रक्षण कीजिए। अष्टाक्षर में यही देते हम सब भगवान के चरण में, श्री कृष्ण शरणम मम। सौंपी दो भगवान ने हाथ, आ रथ आखो सौंपी दो। भले ना सौंपो तो वांधो नहीं, पण घरमांथी बहार निकलता अने घरमां जता कम से कम 2 बार इनको याद कीजिए। घर से बाहर निकले हो तो इसको ड्राइवर के रूप में ले जाओ, आप हमें ध्यान रखो, हमको अच्छी तरह से ले जाइए। वापस आए तो कम से कम थैंक्स के भाव से उनका वंदन कर दीजिए कि आप मुझे हेम खेम लेकर आए घर से। कम से कम 2 रुपया का कोई रुमाल हमेरा गिर गया और किसी ने पीछे से आकर दे दिया तो हम कहते ना थैंक्स। बस ऐसे भाव से जिनको हमको सुलाया, जिनको हमको उठाया, इतनी तो रिस्पेक्ट होती है कि इनको थैंक्स कह दे, इसको याद कर दे। नहीं तो फिर स्वार्थी सेल्फिश हो गए टोटली। फिर भगवान को चिल्ला चिल्ला कर बुलाओगे तो भी नहीं आएगा। कुंता माँ ने सौंप दिया। आज भगवान हस्तिनापुर वापस चले आए, द्वारिका नहीं गए। क्यों नहीं गए, ये भी एक प्रश्न है। जो घर से निकल गए और वापस क्यों आए? कुंता ने सोचा, मैंने बहुत प्यार से उनकी स्तुति प्रार्थना की तो इसलिए कितना वापस आ गया, मेरा प्यार की वजह से वो वापस आया। पांडवों ने सोचा भगवान हमको कितना प्यार करता है, वो हमारे लिए वापस आया। लेकिन भगवान पांडवों के लिए नहीं, कुंता के लिए नहीं, लेकिन भगवान आए विश्व के लिए वापस आए थे। हम सब यही कहते हैं संसार में ये मेरा मेहनत का फल है, मेरा प्रारब्ध का फल है, इसलिए हम इतना सुखी है। नहीं, ये पूरा ठेका आप नहीं लेने का। इसमें कोई पितरों का आशीर्वाद है, कोई गुरुजनों का आशीर्वाद है, कोई संत का आशीर्वाद है, कोई भगवान का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से हमारा शरीर अच्छा है, पारिवारिक अच्छा है, संपत्ति अच्छी है, हम निरोगी है। केवल हमेरा नहीं, ये सबका बंटवारा से, सबका आशीर्वाद से आज हम सुखी है। भगवान विश्व के लिए वापस आए। कैसी स्थिति विश्व की है। छिद्र छिद्र में बाण लगाए हैं, कौरव पांडव दोनों खड़े हैं और भगवान खोज रहा है किसको? भगवान कृष्ण को खोज रहा। अभी मेरा भगवान नहीं आया, अभी तक मेरा भगवान नहीं आया, अभी नहीं आया।
विश्व स्तुति। जब तक हम नहीं चाहते कि हमको यहां से जाना है, तब तक हम मर नहीं सकते। ये अपना मन के पर आधार है। इसलिए आत्मबल चाहिए, मनोबल चाहिए, धैर्य बल चाहिए। केवल सत्ता संपत्ति शक्ति से कुछ नहीं होता है। सब कुछ है, लेकिन आपके पास आत्मबल नहीं है तो, मनोबल नहीं है तो, धैर्य बल नहीं है तो कंगाल है आप। आज विश्व के छिद्र छिद्र में बाण लगे हैं, फिर भी विश्व क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि उसका आत्मबलवान है। वो काल को कह दिया मुझे मत टच करना, मैं आने वाला नहीं हूं। कब तक? जब तक मेरा भगवान नहीं आएगा। संसार में ऐसा अनुभव होता है, हम भी कहते हैं भाई इसका कुछ किसी में मन रह गया है, उसकी लड़की में, उसकी संपत्ति में, उनके पैसों में, भाई उनके पास जाके रखो, बता दो, आ गए वो, और फिर तुरंत आ गए समझ सुनकर चले जाते हैं, क्योंकि इनकी आसक्ति थी, इनका मन था। तो आज विश्व का भी मन भगवान द्वारिकाधीश में है। कौरव और पांडव दोनों पूछते हैं दादा कुछ इच्छा है, कुछ चाहिए? लेकिन दादा तो खोज रहा है, अपने भगवान को खोज रहा है। कैसी स्थिति होती है? दुल्हन को 16 श्रृंगार से सजाकर रखा है, पकवान की सुगंध आ रही है, सब साजन माजन आ गए हैं, और समाचार मिला कि अभी तक दुल्हा नहीं आया। कैसी विकट परिस्थिति आती है लड़की के माँ बाप को। और से थोड़ा सा संदेशा मिले, हवा आए, अरे आए, ये आए, ये आए। आज विश्व के कान के रथ का पैडानो अवाज आयो, घोड़ाना डाबलानो अवाज आयो, અને विश्व एकदम हे मारो भगवान आयो, हे मारो भगवान आयो। जो मंगल घंट संभळाय, मोहन मारो आवे छे। मंगल घंट संभळाय, मोहन मारो आवे छे। एनी स्वारी ना पड़गा संभळाय, मोहन मारो आवे। हरि बोल। हे मारो भगवान आवे, हे मारो भगवान आवे। विश्व में आंख खोली, भगवान नो रथ जोयो। बाणसियाમાં સુતેલા ભીષ્મ દુઃખને ભૂલી ગયા અને સુતા સુતા ભગવાનનું સ્વાગત કર્યું। શ્રી દ્વારિકાધીશ की जय। भगवान रथ से नीचे आए। यहाँ एक प्रश्न होता है। स्वयं भगवान भीष्म के चरण में जाकर खड़े रहे। बड़े लोग तो क्या कहते हैं भगवान के सामने पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन स्वयं भगवान विश्व के पैर के पास खड़े रहे। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान विश्व के चरण में इसलिए खड़े रहे कि क्योंकि मेरे भक्त को लेने के लिए कोई काल नहीं आएगा, मैं काल का काल होकर आज इनको स्वयं लेने के लिए आया हूं। यमुनाष्टक में इसलिए श्री वल्लभ कहते हैं यमो भी भगिनी सुतान कथम यंति दुष्टान अपि प्रियो भवति सेवनात् तब हरेर यथा गोपिका। श्री यमुना जी यम आदि का भय भगाने वाला, तो स्वयं भगवान आज काल का काल बनकर आ गए। भगवान ने कहा रे इतना मैं आया हूं, इतना चिल्ला चिल्ला कर पुकार तो मेरा स्वागत नहीं करोगे? भीष्म हंसने लगा, कैसे करूं मैं स्वागत? अरे बिठाओ तो सही, देखो कोई सीट खाली नहीं है, सोना चांदी का सिंहासन में तो सब लोग बैठ गए, ऐसे मुझे खड़ा रखेंगे? भीष्म ने कहा नहीं नहीं, आपके लिए मैंने एक आसन रखा है। भगवान ने कहा यही तो कहीं दिखाता नहीं, कहां है वो आसन? हंसते हंसते भीष्म ने कह दिया मम हृदय कंज निवास। भगवान
आपके लिए आसन है, ये मेरा हृदय, आप मेरे हृदय में पधारिए। इसलिए गीता कहती है हृदय अर्जुन तिष्ठति। पागल हो गए लगता है, लेकिन इनको पता नहीं है कि भगवान इसके साथ रास खेलते हैं, भगवान उसको उठाता है, भगवान चले जाए तो वो रोता है, क्योंकि वो निर्गुण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। परिक्रमा हम तो एक ही बार परिक्रमा करते हैं, लेकिन आप जितनी बार चलो, जहां भी चलो, आप मन में लगा दो मैं परिक्रमा कर रहा हूं। चलने की क्रिया में भक्ति लगा दो तो अपने आप परिक्रमा हो जाएगी। स्पेशल पैसिफिक जाने की आवश्यकता भी नहीं है। और आपके अनुभव होता है, मॉर्निंग वॉक करने के निकले हो और अपना दोस्त मिला और बोलते हैं कहाँ जाते हो? अरे घूमने के लिए जा रहे आधे घंटे। घर में आकर फ्रेश होकर मंदिर में गए और मंदिर में 2-4 चक्कर लगा रहे हो, वहां वही मित्र मिला, क्या कर रहे हो? आप ऐसे कहते हो हम घूम रहे इधर इधर, वहां बोलते हम परिक्रमा करते हैं। क्रिया तो एक ही है चलने की, लेकिन उसमें भक्ति आ गई तो परिक्रमा बन गई, और भक्ति नहीं आई तो ऐसे चलने निकल गई घूमने। अनुभूति की जो कथा है, बाण से हमें सुते भीष्म ने कहा आप मेरे हृदय में विराजमान होइए। भगवान भीष्म के पास आए, सिर पर हाथ रखा और पूछा दादा क्या सोच रहे हो? जीवनना करेला कर्मों ने याद करवानो एक समय એટલે અંતિમ સમય, જેણે જિંદગીમાં કેટલો થાકી ગયો કે ઘરથી ડગલ સ્મશાન 4 ડગલે પણ કંદેરે બદલ બદલ કે ભીષ્મે કહ્યું દાદા હું ભગવાનનું વિચારી રહ્યો છું, મેં મારા જીવનમાં એવું કયું પાપ કર્યું હતું કે આજે મને મૃત્યુના સમયે કોઈ રૂની પથારી ન મળી અને છિદ્ર છિદ્રમાં બાણની પથારી મળી? કંઈક તો હશે, મને યાદ નથી આવતું ભગવાન, હું યાદ કરાવું. હા, ભર સભામાં દ્રૌપદીની લાજ લૂંટાઈ. ભીષ્મે આપણી જેમ જ કહી દીધું ભગવાન મેં જોયું નથી, મેં તો આંખો બંધ કરી દીધી હતી. ભગવાન કે આંખ બંધ કરી પણ કાન તો ખુલ્લા રાખ્યા હતા ને. મૌનમાં આપણી હા થઈ ગઈ. ભીષ્મે કીધું પણ ભગવાન મેં તો પ્રતિજ્ઞા લીધી હસ્તિનાપુરનું રક્ષણ કરવાની. ભગવાને કીધું કોનું રક્ષણ કર્યું તમે? પાંડવોનું કૌરવોનું રક્ષણ કર્યું તમે, હસ્તિનાપુરનું રક્ષણ ન કર્યું. અનિતિનું અન્ન તમારા શરીરમાં ગયું છે, એ છિદ્ર છિદ્રમાંથી બહાર નીકળી રહ્યું છે. ભીષ્મનું મન શાંત થઈ ગયું. સાચી વાત છે ભગવાન, હું અજ્ઞાનતામાં જડ બની ગયો હતો, શું કરવું ન કરવું એનો વિવેક નહોતો. ભૂલ કરી હસતા હસતા સ્વીકારી લો. પણ બસ આપણે સ્વીકારવા તૈયાર નથી તો પછી ભૂલોની ભૂલો થયા જ કરે છે. ભીષ્મે સ્વીકારી લીધી, મન શાંત થઈ ગયું. હવે ભગવાનને કહેવા લાગ્યા ભગવાન મારી એક ઈચ્છા છે, બોલો જે ઈચ્છા હોય બોલો. જ્યાં સુધી શરીરમાંથી પ્રાણ ન નીકળે ત્યાં સુધી આપ મારા સાનિધ્યમાં ઉભા રહો. સારું. બીજી એક ઈચ્છા છે, મારે એક દીકરીના લગ્ન કરવા છે અને લગ્ન માટે મારે મુહૂર્ત્યો શોધવાનો છે, પણ હું તો જઈ શકું એમ નથી, એટલે તમને કામ સોંપો. ભગવાને કીધું અહીં ક્યાં ટાઈમ છે, પણ હવે દીકરી પરણાવી તો પડશે, ઈચ્છા છે એટલે. દાદા તમારી દીકરીને પૂછી જવો કેવું મૃત્યુ જોઈએ છે. એટલે ભીષ્મે કીધું કે હાલ તો ચાલતો નહીં હો, ગમે તે પકડી લાવે એવો નહીં, ગુણવાન શીલવાન બળવાન ધનવાન જ્ઞાનવાન. ભગવાને વિચાર્યું આટલા બધા ગુણવાળો મુહૂર્તો શોધવા ક્યાં જઈશ પાછો, પૂછો ને તમારી દીકરીને પસંદ કરી હોય તો પછી એને લઈ આવો. અને ભીષ્મે કીધું હા પસંદ જ છે, તું બતાવો કોણ? બીજો કોઈ નહીં, આપ. કઈ મારી દીકરી છે? જે ભીષ્મે શ્લોકથી શરૂઆત કરી
इति मतिरुपकल्पिता हि तृष्णा भगवती शाश्वतपुङ्गवे विभोम्नि। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं कविवरमर्यवराम्बराम्। इति मतिरुपकल्पिता मतिरुपकल्पिता हि तृष्णा शाश्वतपुङ्गवे विभोम्नि। इति मतिरुपकल्पिता हि तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभोग्नि। या इति शब्द की शुरुआत की है। इति शब्द तो अंत में आता है। इति श्रीमद् भगवत गीता। तो यहां विश्व ने इसलिए इति किया, मेरी लौकिकता का अंत होता है और अलौकिकता का प्रारंभ होता है। अभी तक मैं था, लेकिन अब मैं नहीं, मैं आपका हो गया। इसलिए मेरी इच्छा है आप मेरी बात सुनिए, मेरा अंत तक आप मेरे सामने खड़े रहो और मेरा वाणी से प्रवाह निकल रहा है स्तुति के माध्यम से आपके चरण में समा जाए। दूसरे श्लोक में जो बताया है, त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने।